Hi and welcome to our daily mains answer writing program day 11. Today we are going to discuss about a question about parliamentary committee that is part of GS2 syllabus, that is parliament and its functioning. Let's start with our question. Our question today is discuss the significance and prevailing issues in the functioning of parliamentary committees. So we will have to discuss what is the importance of parliamentary committee and what are the prevailing issues related to the parliamentary committees. So our answer pattern, let's start with the intro, body, conclusion, the same pattern which we follow every day. In intro we will discuss in brief about parliamentary committee. In the body part we will discuss about the significance and what are the issues related to parliamentary committee, and lastly in conclusion we will suggest some ways which can address the issues in the functioning of parliamentary committees and can improve their working. So what is a parliamentary committee? A parliamentary committee can be defined as a panel of member of parliaments, MPs, that are either appointed or elected by the House, or either they are nominated by the Speaker and works under the direction of the Speaker in order to increase parliamentary scrutiny and to give members more time and wider role in examining important legislation. So this is the most basic fundamental definition or the description of parliamentary committee, which covers all the aspects in summary about the committee. Parliamentary committee की authority constitutionally कहाँ से आती है? So there are two articles related to that, that is Article 105 and Article 118. Article 105 relates to the privileges of MPs or member of parliament, which also allows for freedom of speech in parliament within the precinct of parliament, and Article 118 which gives parliament the authority to make rules to regulate its own procedure and conduct of business. So these are the two articles which basically allows for the formation, conduct and functioning of the parliamentary committees. Let's talk about the significance or come on the body parts of the answer, body part of the answer. So the significance of parliamentary committees, it is one of the very important aspect of working of parliament or the democracy. It first acts as a mini parliament, It provides representation to all parties to voice their opinion. See, a parliament is made up of representatives coming from all the parties elected across the country. Similarly, a parliamentary committee is formed in such a way, parliamentary committee इस तरह से बनाई जाती है कि सारी political parties जो हैं उनके members in proportion to their representation in parliament यहाँ पे होते हैं. For example, if 60% members belong to a ruling party, the स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी में किसी भी इशू पे एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनेगी उसमें 60% मेंबर्स विल बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी. सो बेसिकली इफ़ वी काउंट ऑन, अगर हम देखें तो सारे मेंबर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका कुछ प्रपोर्शन है विच आर गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, सो वहाँ पे सेम प्रपोर्शन में कमेटी में एक मेंबर्स उनके होंगे. that will give rise to a form of mini parliament acting as a discussion. Then what is the need of this making mini parliament? What is the need of making a parliamentary committee? See, any issue cannot be discussed. There is a fixed calendar, there is a fixed number of days on which parliament comes, sits and discuss on various issues. So there is a limit on the time, amount of time and the amount of capabilities, on the amount of resource capabilities which restrict the amount of discussion on any particular issue. एक particular issue पे एक limited time ही discussion किया जा सकता है, because there is a need to give time to other issues, discussion on other issues also. That is why एक parliamentary committee अलग से बनाई जाती है एक issue पे, जो या फिर किसी एक specific standing committee जो already existence में है उसको already एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनली दी जा सकती है किसी इशू पे डिटेल्ड डिस्कशन करके एक रिपोर्ट बनाने के लिए, जिस पे एक ब्रॉडर डिस्कशन हो सके. सो बेसिकली ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन देती है कि वो अपना ओपिनियन वॉइस कर सकें किसी पर्टिकुलर इशू पे इन डिटेल, नॉट इन रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट. दूसरा, मल्टीपल स्टेक होल्डर से फीडबैक की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है. जब भी किसी बिल को इन कमिटीज़ को रेफ़र किया जाता है, ये क्लोजली एग्जामिन होते हैं और जो भी पब्लिक या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो भी इनपुट आया है उसको एग्ज़ामिन करके इन पे डिटेल डिस्कशन, फीडबैक लेके उस पर एग्ज़ामिन किया जाता है कमेटी के थ्रू. देन देयर इज़ मोर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन.
सी पार्लियामेंट में व्हाट हैपन्स, पार्लियामेंट में मेंबर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको पॉलिटिकल पार्टी ने जो विप दिया है, पॉलिटिकल पार्टी ने जो विप इशू किया है कि आपको यही बोलना है या यही स्टैंड लेना है उस इशू पे, मेंबर्स आर बाउंड टू टेक दैट स्टैंड in order to avoid any kind of disqualification or defection or getting expelled from their political party. कमिटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के जो डिस्कशन होते हैं, दे आर क्लोज्ड डोर डिस्कशन, ये एक बंद कमरे में होते हैं, एंड दे आर ऑफ कैमरा डिस्कशन, मतलब इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है. मेंबर्स आर फ्री टू शेयर देयर ओपिनियंस फ्रीली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी दे बिलोंग टू. वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, बट दे कैन they can express their views in whatever manner they want to, in whatever thought process they think along. So here occurs more objective discussion, not on the basis of political leverage or political advantage, so that जो discussion से outcome निकल के आए वो more objective हो, वो more reality based हो, more truthful हो, then एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट्री डिस्कशन जो मीडिया के लिए या लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहता है कि हम ये लोगों के लिए करना चाह रहे हैं. पॉपुलिस्ट मेजर वहाँ पे ज़्यादा लिए जाते हैं. चौथा, फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती हैं कमेटी. सी पार्लियामेंट की जो डिस्कशन होते हैं, पार्लियामेंट जो डिसीजन होते हैं वो खुद ही लेता है. कमेटी जो भी रिकमेंडेशन या एडवाइस देती है, दैट इज़ ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. But if parliamentary committee is giving some specific recommendation, and if government is not following that recommendation, it comes under pressure from the public that why you are not following that specific recommendation based on objective criteria. This is the fourth important significant factor of significance of parliamentary committee. The fifth one is scrutiny of public fund. There are specific committee, that is committee on public funds, like committee on public undertakings. These committees जो हैं, they examine the reports of CAG on various expenditure incurred by government, and they scrutinize whether the government has utilized the fund thoughtfully and in genuine conscience or not. मतलब वेस्ट तो नहीं किया है किसी मनी का, या कहीं पे गलत यूजेज मिसयूज़ तो नहीं हुआ है मनी का, उसको स्क्रूटनाइज करने में हेल्प करती है. Then it ensures answerability and accountability of government. पार्लियामेंट में जो भी गवर्नमेंट जो भी पावर में है, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी उस गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करती है कि वेदर द एश्योरेंसेज एंड प्रोमिसेस यू हैव गिवन टू पब्लिक, you have been fulfilling them or not, and if you are not fulfilling them, what is the reason behind them. This ensure accountability of the government. एक एडिशनल जो बेनिफिट है पार्लियामेंट्री कमेटी का वो ये है, सी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करती है टू इंश्योर इट्स अकाउंटेबिलिटी, बट गवर्नमेंट मीन्स ओनली द MPs विच आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन. पार्लियामेंट डू नॉट क्वेश्चन द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, IAS IPS या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं विच आर एग्जीक्यूटिंग द डिसीजन. इट डू नॉट क्वेश्चन दोज ऑफिसर्स, इट डू नॉट हैव द टाइम और कहना चाहिए रिसोर्सेज टू क्वेश्चन दोज ऑफिसर्स, एक ऑफिसर से जाके पूछना कि ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई स्कीम. पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ द अथॉरिटी टू क्वेश्चन, टू समन एनी ऑफिसर, ब्रिंग देम ऑन बोर्ड एंड आस्क देम क्वेश्चन कि अगर ये स्कीम या पॉलिसी लगाई है तो क्यों लगाई है, ये सक्सेसफुल नहीं हुई है तो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई है. सो दिस बेसिकली एनलार्जेस द स्कोप ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बाय ऑल्सो इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट. So this is one more major advantage. Then expertise, committees जो हैं एक्सपर्ट का, सी जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, इट इज़ गेटिंग बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ MPs टू एक्सपांड देयर नॉलेज इनडेफिनेटली. उनकी भी एक लिमिट है कि वो अपना नॉलेज किस हद तक एक्सपांड कर सकते हैं. सो इस केस में कमिटीज़ जो होती हैं, दे हैव द अथॉरिटी टू आस्क फॉर expert opinion and then prepare their report accordingly in order to help the parliament function more effectively. जैसे कि 2016 में सरोगेसी रेगुलेशन बिल आया था, तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई थी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी थे हेल्थ केयर के, विच इन ऑर्डर टू गिव देयर इनपुट्स टू द MPs फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट बिल प्रिपरेशन. Then flexibility,
पार्लियामेंट्री अराउंड 100 सिटिंग्स अ ईयर कंडक्ट करता है, 100 to 120 डेज़ ही बैठता है पार्लियामेंट डिस्कशन करने के लिए कुछ इश्यूज़ पे, तो दैट रेस्ट्रिक्ट द टाइम इट हैज़ in order to discuss on various issues. But committee की जो meetings हैं they are independent of parliament calendar, they can sit on as many number of days as it want for a particular issue discussion, so that gives it a flexibility to to discuss any issue in a much more detailed manner than it is possible in parliament. These are the importance and significance of parliamentary standing committees in particular. What are the issues related to parliamentary committee in recent time? First, there is a decline in matters which have been referred to parliamentary committee for scrutiny by parliament. 14th लोकसभा जो थी वहाँ पे 60% बिल्स जो थे वो रेफ़र हुए थे पार्लियामेंट्री कमेटी को. 15th लोकसभा में it was 71% of bills were referred to the departmentally related standing committees, but 16th Lok Sabha mein this proportion came down heavily to 27%, to merely 27%. Only 27% of bills in 16th Lok Sabha were referred to departmentally related standing committees, जो department से related, हर department और ministry से related issues को analyze करता है. Then जो ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो डिसीजंस हैं रिसेंट टाइम में, जो कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर बिल्स पास किए गए हैं, उनमें पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई भी एडवाइस या फिर डिस्कशन या फिर मैटर्स जो हैं उनसे डिस्कस नहीं किए गए, उनको नेग्लेक्ट किया गया पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को. जैसे कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इन ऑर्डर टू गिव यूनियन टेरिटरी स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल स्टेटस हटा के उनका, फार्म बिल्स को रिलीज़ करना या पास करने में, लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन में, ये सारे जो नेशनल लेवल के इम्पॉर्टेंस के जो इश्यूज़ हैं उन किसी भी इश्यूज़ में पार्लियामेंट्री कमेटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया फॉर ग्रेटर इन डेप्थ स्क्रूटनी, जिसका कंसिक्वेंस ये निकला कि कई जगह, हर जगह पे गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट फेस करना पड़ता है. इनफैक्ट फार्म बिल्स जो पास हुए थे वो तो रिपील कर लिए गए. देन इसके अलावा कुछ अदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, जैसे लो अटेंडेंस ऑफ एमपीज़. मीटिंग्स में एमपीज़ जो हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के एमपीज़ अक्सर एब्सेंट रहते हैं. कमेटी के अंदर मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं, मिनिस्टर्स जो होता हैं, उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. दैट डिफीट्स द पर्पस, क्योंकि मिनिस्टर्स बेसिकली अपनी ही बात जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं रेदर देन डिस्कसिंग ऑन द इशू ऑब्जेक्टिवली. देन नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड बाय मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़. अपने एमपीज़ को नॉमिनेट करते टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं जो आइडियली करने चाहिए. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ वे फॉरवर्ड हमारा? तो जो हमने इश्यूज़ आइडेंटिफाई करे उन्हीं की लाइंस में हमारा कंक्लूजन यह होना चाहिए. वे फॉरवर्ड हमको ज़्यादा से ज़्यादा नई कमिटी सेटअप करना चाहिए जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और न्यू एंड मोर डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं कंट्री में, उनसे डील कर सकें उसके लिए. देन जिन इश्यूज़ पे डिसएग्रीमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का या फिर सोसाइटी में डिवीज़न होता है जिन इश्यूज़ पे, उनमें डिस्कशन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का डिस्कशन मैंडेटरी कर देना चाहिए. उन कमिटीज़ की रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को जेन्युइनली सीरियसली कंसिडर करना चाहिए इन ऑर्डर टू एनफोर्स एनी डिसीजन रिलेटेड टू दोज इश्यूज़. देन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC जो 2001 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन ऑर्डर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने ये रिकमेंड किया था कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो कंपोजिशन है, उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए. और ऐसी कमिटीज़ जिनकी अब यूटिलिटी नहीं बची है क्योंकि टाइम के साथ सोसाइटी चेंज होती है एंड देयर आर सम इश्यूज़, देयर आर सम कमिटीज़ विच बिकम्स इररेलेवेंट, जिनका अब कोई रेलिवेंस नहीं है, उनकी जब एक नई कमिटीज़ का रेलिवेंस अब आ चुका है, नई कमिटीज़ की नीड आ चुकी है, तो उन कमिटीज़ को हटा के नई कमिटीज़ को बनाना चाहिए पीरियोडिक रिव्यू करके. एंड लास्टली रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के, उनको अमेंड करना चाहिए और उन रूल्स में एक रूल रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा मेजर बिल अगर पार्लियामेंट में लाया जाता है देन इट शुड बी कंपल्सरीली और मैंडेटरीली रिफर्ड टू डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ for better or greater public scrutiny. You can also add a special line or ending line in concluding with the answer, that is parliamentary committee serves as supplement in order to
improve the democratic environment in the country by supporting the parliament and by improving the decision making process. So this is how we can conclude the answer of our question, and I hope this question is clear to you. Please write the answer. I have also made a Telegram group where you can submit your answer for review. So please join that group if it is possible for you. Submit your answer daily. After watching the question, I will review the answer and personally deliver it to you, personally send it to you. And do join the channel for present in the Telegram of Lumen IAS Foundation in order to get the daily answer PDF which I put up here, which I discussed here. Thank you very much for watching the video.